So hello class 10th. I was not able to post any videos from last 1 or 2 days because of some problems. So the last video, what we're reading about the respiration in plants. So no, animals, but in lower animals like amoeba, paramecium, insects, frog, earthworm. So today we'll read about respiration in humans. Okay, respiration in humans. Basically, what we have seen in lower organisms, they have a small body like amoeba, paramecium. They have a small body, hence their volume of body is less, their energy requirement is less, so demand for oxygen is less. But in case of human, their body volume is very high and their oxygen demand is very high. So diffusion cannot fulfill that oxygen demand. Diffusion is a slow process actually. वो बॉडी के डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता. Clear? That's why we breathe in, okay, through, or we have a different system. We have a total system for respiration, okay, that is called as respiratory system. Okay, a system which involves some organs like lungs, trachea, bronchi, okay, which help for respiration. Okay, so we know respiration has two parts. One is breathing, the other one is cellular respiration. So if I talk which is the breathing site, breathing कहाँ होता है? It takes place in lungs. Clear? And if we talk which is the respiration site exactly, it is the cells of the body. Clear? Breathing site अलग है, respiration site अलग है. Clear? Respiration का part ही है दोनों, लेकिन respiration exactly क्या है? Producing energy वो कहाँ होता है? Cells में होता है. Okay? So respiratory sites are cells and breathing sites are lungs. Clear? Now let's first talk about breathing. Breathing means taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Means inhalation, exhalation. Clear? Inhalation means we take in oxygen. Exhalation we give out oxygen. Sorry, give out carbon dioxide. What that is produced after respiration. So during inhalation, what happens? Let's see. Two main parts are involved in inhalation, or mainly breathing. That is, the first one is the rib cage, okay, and the second one is the diaphragm. Clear? Okay, 1 second. You can see here, it is the rib cage and it is the diaphragm. Clear? So what I have made here, simply rib cage, diaphragm. This is a normal position. Okay, but what happens during inhalation? This muscles of rib cage, otherwise called as intercostal muscles, okay, they are otherwise called as intercostal muscles, they contract. Clear? And they move upwards and outwards. Clear? तो इनका पोजीशन ये है, तो ये हो जाएगा थोड़ा ऊपर. ओके, समझ में आ रहा है? हियर तुम पोजीशन देखो, ये यहाँ पे था, लेकिन इसका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इट मूव्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ ही मूव कर गया. क्लियर? इसके साथ साथ डायफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये मूव करेगा डाउनवर्ड्स, इस तरह. क्लियर? मैं कुछ ज़्यादा ही इसको बेंड कर दिया हूँ, इतना नहीं होता, बट मैं बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ. तुम पोजीशन देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, लेकिन इस पोजीशन में when the both the intercostal muscles means the chest ribcage muscles and diaphragm contracted, the diaphragm moved downwards and the ribcage moved upwards and outwards. Clear? In this case, a lot of space is made. Here, the lungs can expand and it can what? Grab or intake a large amount of oxygen. समझ में आया? यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या एंटर हो सकता है. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो तुम यहाँ देख सकते हो इनहेलेशन में, देखो क्या क्या दिखाया गया है. ये इनहेल करने से क्या हुआ, ये फूल गया है पूरा. ओके, साइज बड़ा हो गया है.
समझ में आ रहा है? और अगर यही केस सोचो, ये नॉर्मल पोजीशन है और एक्सहेलेशन देखेंगे, एक्सहेलेशन, तो क्या होगा? रिबकेज डाउनवर्ड्स मूव कर जाएगा नीचे की तरफ और डायफ्रागम ऊपर की तरफ पूरा चिपक जाएगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप भी है ना, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्लियर? इनहेलेशन में रिबकेज अपवर्ड्स आउटवर्ड्स, डायफ्रागम डाउनवर्ड्स, स्पेस बना, लेकिन एक्सहेलेशन में रिबकेज डाउनवर्ड्स इनवर्ड्स, नीचे के तरफ, अंदर के तरफ, और डायफ्रागम अपवर्ड्स। तो ये दोनों इस तरह से टाइट हो गए, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, प्रेस कर गए, कि अंदर का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है सब बाहर आ जाएगा। क्लियर? लंग्स वॉल्यूम विल व्हाट? डिक्रीज, एंड ड्यू टू हाई प्रेशर ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। समझ में आया ब्रीद इन में और ब्रीद आउट में कैसा प्रोसीजर अप्लाई होता है बॉडी के अंदर? सो if we are comparing both of them, you can see this is the condition of the rib cage or lungs in inhalation. कितना बड़ा है? ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलेशन में कितना छोटा हो गया है? स्क्वीज, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आया। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इनहेलेशन में स्पेस बनता है। कैसे? रिबकेज अपवर्ड आउटवर्ड गया, डायफ्रागम डाउनवर्ड गया, स्पेस बना, लंग्स एक्सपैंड किया, ऑक्सीजन इनटेक किया। लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो स्पेस घटता है। तो देख सकते हो, पोजीशन देखो डायफ्रागम का, यहाँ पे कैसा और यहाँ पे कैसा है। डायफ्रागम पूरी तरह से रिलैक्स होकर अंदर चला जाएगा और रिबकेज नीचे चला आएगा, इनवर्ड डाउनवर्ड, तो कोई स्पेस बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा और लंग्स स्क्वीज हो जाएगा और सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पार्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, like we have different parts through which we respire. Okay, like nose, lungs, different parts of lungs. Okay, so the first part in the respiratory system is nose. Okay, it is the first part which helps to intake the air. Okay, I will not say it helps in taking oxygen, because along with oxygen it also takes other gases. Clear? So nose is the first part which what intakes the air. Okay, and the nose has two passages. We know that. Clear? Two passages. Both the passages, okay, they are called as nostrils. Clear? They are called as nostrils. This passage, ये पूरा स्ट्रक्चर नोज है तुम्हारे लिए, लेकिन एक पैसेज ये जो है और ये जो है, इनको बोलेंगे नॉस्ट्रल्स। क्लियर? नॉस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर और म्यूकस। ओके, इनसाइड नॉस्ट्रल वी हैव नासल हेयर एंड म्यूकस, नासल म्यूकस, विल कॉल इट नासल म्यूकस। ओके, नॉट ओनली म्यूकस, नासल म्यूकस। लेकिन म्यूकस इज अ फ्लूइड लाइक थिंग which can be present in many parts. Okay, like buccal mucus means मुंह के अंदर जो म्यूकस है, I mean what? सलाइवा, नाक के अंदर होगा नासल म्यूकस। क्लियर? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फिर म्यूकस मिल जाएगा, तो उसको उसी तरह बुलाएंगे उसके नाम से। क्लियर? ओके, सो व्हाट द फंक्शन ऑफ नासल हेयर एंड नासल म्यूकस? नासल हेयर will restrict the impurities. Okay, means helps for basically when we intake air, this air is not purified, it contains dust particles also. Clear? So nasal hair will what? Purify or what? Restrict the impurities. Okay, and mucus will join them. Clear? mucus क्या करेगा? चिपचिपा चीज होता है तो अपने में जोड़ लेगा उसको। नासल हेयर रोक दिया और म्यूकस अपने में जोड़ दिया उसको, तो जितना कचरा नॉस्ट्रल के अंदर भरा रहेगा उसको खाने का नहीं है, वो खाने का चीज़ नहीं, वो इम्प्योरिटीज़ है। समझ में आया? क्लियर? तो ये दोनों का मेन काम क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। सीधी सी बात है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। ओके, इनहेल्ड एयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नासल कैविटी। ये तो नोज और नॉस्ट्रल हो गया, उसके बाद जो पैसेज होता है, क्लियर, ये छोटा सा पैसेज होता है नासल कैविटी। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज नासल कैविटी। और बेसिकली नहीं, ये हम इन पार्ट्स को ही बोल सकते हैं। देखो एग्जैक्टली कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि नासल कैविटी इसके पीछे से शुरू होता है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। नॉस्ट्रिल्स सिर्फ ये,
ये होल्स को नॉस्ट्रल बोलेंगे। ये जो रास्ता है ना, हाँ, ये होता है नासल कैविटी। क्लियर? और एग्जैक्टली नासल हेयर और नासल म्यूकस यहीं पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, ये अगर तुम्हारा नोज है, क्लियर, एक थोड़ा बड़ा हो, छोटा बड़ा हो गया, सो दिस इज अ नोज, दिस होल्स आर व्हाट, दिस होल्स आर nostrils, okay, and this passage is exactly called as nasal cavity, okay, nasal cavity। कुछ बुक्स में शायद ऐसा लिखा होगा कि ये पूरा nostrils है और इसके बाद nasal cavity शुरू होता है। exactly ऐसा नहीं है, ये होल्स को सिर्फ nostril बोलेंगे और इन पैसेजेस को, इन गैप्स को क्या बोलेंगे? nasal cavity। क्लियर? और नासल कैविटी के अंदर नासल हेयर और नासल म्यूकस रहता है। समझ में आया? क्लियर? हमारा पहला पार्ट था नोज, दूसरा पार्ट था नासल कैविटी, तीसरा पार्ट है फेरिंग्स, ओके, थर्ड पार्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट। क्लियर? हमारा थ्रोट का एक पार्ट है जो कि तुम्हारे माउथ से नीचे होता है लेकिन ट्रकिया से ऊपर होता है। क्लियर? लाइक स्ट्रक्चर तुम देखोगे, ये रहा, ये रहा, ये है ट्रकिया यहाँ, ओके। माउथ के बाद आता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रकिया नहीं बोल, मैं क्या बोल रहा था? फेरिंग्स, आई एम वेरी सॉरी, फेरिंग्स। फेरिंग्स ये पार्ट है, देखो माउथ के नीचे ही है लेकिन तुम्हारे ट्रकिया के ऊपर है। क्लियर? इट इज अ पार्ट बिटवीन माउथ एंड ट्रकिया। समझ में आया? इट इज अ पार्ट बिटवीन माउथ एंड ट्रकिया। तुम्हारे पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट है जो दो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, वो है फेरिंग्स। क्लियर? फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंक्लूडेड है, डाइजेस्टिव में भी इंक्लूडेड है। क्लियर? समझ में आया? फेरिंग्स सोचो एक चेक गेट है, एक टोल गेट है। क्लियर? हमारे पास दो पाइप्स है, एक है हमारा फुट पाइप, दूसरा है हमारा विंड पाइप। क्लियर? दोनों के ऊपर एक कॉमन पैसेज है, वही है फेरिंग्स। समझ में आया? जब खाना खाना होता है ना तो फूड पाइप के ऊपर से फेरिंग्स उठ जाएगा, खाना फूड पाइप में जाएगा। क्लियर? और जब तुम्हें सांस लेना है, एयर इनहेल कर रहे हो, तो विंड पाइप के ऊपर से क्या हो जाएगा? तुम्हारा फेरिंग्स उठ जाएगा और एयर इनहेल होगा। ऐसा बहुत बार हुआ होगा, तुम पानी पी रहे हो और तुम पानी पीते पीते हंसते हुए सांस ले ली, बीच में क्या होता है? नाक के अंदर से घुस जाता है और बाहर निकलता है। ऐसा हुआ होगा शायद, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। ओके, इसको बोलते पानी चढ़ गया, पानी चढ़ गया। क्लियर? सो होता क्या है एग्जैक्टली, तो तुम पानी पीते पीते या खाना खाते खाते इन द मिड तुम स्वॉलो कर रहे हो, तब तुम सांस ले लिए ना, तब प्रॉब्लम होता है कि खाना जो है कभी कोई विंड पाइप में घुस जाता है, कभी कभी। ठीक है? और बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स एक प्रोटेक्टिव एक्शन है, उसके वजह से विंड पाइप से खाना बाहर निकलता है या पानी जो है बाहर निकलता है। क्लियर? क्योंकि विंड पाइप से निकला है तो कोई माउथ से बाहर नहीं निकलेगा, नोज से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर इसका मैकेनिज्म में, फेरिंग्स का मैकेनिज्म अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो बताना। क्लियर? लेकिन बेसिक थिंग यही है दैट फेरिंग्स इज अ पार्ट which is a part of throat and it is below the between mouth and trachea। माउथ से नीचे, ट्रकिया से ऊपर पाया जाएगा। क्लियर? ये दिस इज अ पार्ट which means it is included in two systems, respiratory as well as digestive। Clear? Okay, means after the nose intaking the oxygen passes through the nasal cavity and then through trachea. After nasal cavity, air will move through pharynx, not trachea, pharynx. Clear? Okay. After pharynx, the next part is windpipe, or called as trachea. Clear? Windpipe or trachea. Spelling याद रखो, TRACHEA. Clear? Trachea. So यहाँ पे क्या होता है? This trachea is made up of cartilage rings. Okay? This trachea is made up of cartilage rings. Okay, that's why it doesn't collapse. ये collapse सिर्फ मसल से नहीं बना, ये कार्टिलेज के रिंग से बना है। क्लियर? That's why it doesn't collapse. Okay,
Clear? So Pikachu. Sorry for that. So trachea is made up of cartilage and doesn't allow the trachea. This cartilage doesn't allow the trachea to collapse. Okay. So after pharynx, the air moves through trachea. If I talk exactly, it enters the nose, nasal passage, then pharynx, then this trachea. And this trachea's main function is it provides this air to both the lungs. Clear? It provides air to both the lungs. You can see the structure here. ट्राकिया अपने ऊपरी हिस्से में लैरिंक्स से कनेक्टेड है. ओके, और नीचे के हिस्से में ये डिवाइड हो गया है दो और पार्ट्स में. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस. क्लियर? ईच ब्रोंकस, एक होगा तो ब्रोंकस, दो होगा तो ब्रोंकी. क्लियर? अ सिंगुलर इज ब्रोंकस and plural is bronchi. Clear? So the trachea in the upper part connected to larynx, and then the lower part it is divided into two smaller passages or pipes, I can say pipes or passages of air, and these are called as bronchus. Clear? This bronchus is like a subdivided part of trachea which takes the air from trachea and supply it to both the lungs. Each bronchus enters each lungs. दो lungs है, दो bronchus है हमारे पास. एक bronchus एक lungs, मतलब right bronchus right lungs, left bronchus left lungs. Clear? बाद में यही bronchus आगे जाके और छोटा छोटा parts बनाएगा, इसको हम बोलेंगे bronchiole. देखो ये bronchus है. Clear? ये आगे गया, ये part देखो, ये part देखो, ये pipes देखो, ये छोटे pipes देखो, ये है bronchioles. Clear? Smaller tubes of bronchus are called as bronchioles. समझ में आया? ये दिया गया है ब्रोंकियोल्स. देखो, एंड एट द एंड ऑफ एवरी ब्रोंकियोल विल फाइंड ए एयर पाउच. ओके, एन एयर सैक दैट इज कॉल्ड एज alveoli. हर एक ब्रोंकियोल के लास्ट में, एंड में हम देखते हैं तो एक एयर पाउच है, एयर सैक है हमारे पास. क्लियर? और यही क्या करता है? यही हमारे लिए एयर एक्सचेंज करता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज alveoli. These alveoli are the site of gases exchange. Clear? Here nearby alveoli we can see a lot of blood vessels. I'm making this. सोचो ये एक bronchiole है और यहाँ पे वो alveoli है, तो इसके पास से blood vessel गुजरा होगा. Clear? So यहाँ से जितना ऑक्सीजन इनटेक हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आएगा ब्लड वेसल्स में. क्लियर? और ब्लड वेसल में जितना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा सब यहाँ जाएगा. As because gases, respiratory gases are exchanged here, this alveoli is the site of gaseous exchange in our respiratory system. Clear? समझ में आया? Getting my point? Now we have got an idea about this thing. Okay, sorry, I have not told you about lungs. Okay, we have two lungs. Okay, basically pink in color, and they are covered with a membrane of protection. Okay, that is called as pleura. Okay, it is called as pleura. This pleura is double layered. Okay, this pleura is double layered or two layered. Okay, suppose I make it here. ट्राकिया है, ब्रोंकी है, लंग्स है. क्लियर? सो लंग्स के ऊपर एक कवरिंग रहेगा. दो लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग रहेगा जिसको हम बोलेंगे प्ल्यूरा. एंड दिस कवरिंग इज टू मेम्ब्रेन थिक और डबल लेयर्ड. ओके, दो मेम्ब्रेन होता है. क्लियर? एंड ये पूरा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है थोरासिक कैविटी और चेस्ट कैविटी. रिब केज, रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स हियर. क्लियर? समझ में आया? एंड बिलो दिस रिब केज विल फाइंड अ थिन शीट ऑफ मस्कुलर शीट दैट इज कॉल्ड एज डायफ्रैगम. ओके, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग. क्लियर? ठीक थोरासिक कैविटी के नीचे, रिब केज के नीचे एक ऐसा एक मस्कुलर शीट या मेम्ब्रेन होता है. क्लियर? जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैगम, एंड दिस हेल्प्स और कंट्रोल्स द ब्रीदिंग. क्लियर? पार्ट सब समझ में आ गया? इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. पार्ट्स को समझो, मुझे लगता है कि डाउट पक्का निकलेगा अगर तुम पढ़ते हो तो. ओके, सो लेट मी नो इफ यू हैव सम डाउट्स. एंड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून वी विल रीड अबाउट द प्रोसीजर और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, हैव अ गुड डे.